نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، سورۃ الملک پچھلے سورت ہے جس کی درس مکمل ہو چکے ہیں. آج سورۃ القلم ہے. اس سورت کے اندر، یہ سورت مکی ہے اور اس کی 52 آیاتیں ہیں اور اس میں 2 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سب سے پہلے میرے محترم دوستوں، اس سورت کا وجہ تسمیہ اور اس کی قواعد. اس سورت کی پہلی آیات میں قلم کا لفظ مذکور ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ القلم ہے. اور اس سورت کے اندر 52 آیاتیں ہیں اور 300 الفاظ اور 1256 حروف ہے. اس سے پہلے سورۃ الملک کی 30 آیات تھیں اور اس کی 52 آیات ہے. اس کی 52 آیات ہے. اور سورت کی مضامین کا رابطہ، اس سے پہلے سورہ میں توحید، ذات خداوندی، دلائل توحید، جزائے اعمال اور ضمانت رسالت کا ذکر تھا. اس سورہ میں زیادہ تر رسالت کا تذکرہ ہے. زیادہ تر تذکرہ اس سورت کا رسالت پر ہے. جزائے اعمال اور قیامت کا ذکر بھی اس سورت میں ہے. پہلی جو سورت گزرے ہیں سورۃ الملک، اس سورت میں توحید کے زیادہ تر دلائل تھے. اور یہ سورۃ القلم، اس میں نبوت اور رسالت پر اعتراضات کا جواب اور اس کا رد کیا گیا ہے. نبوت اور رسالت کے اوپر جو اعتراضات تھے اور جو اس کے اندر اعتراضات کی جواب دیا گیا اور ان اعتراضوں کو رد کیا گیا اور تنبیہ کی گئی کہ خاص طور پر مکے کے خوشحال لوگوں کو تنبیہ کیا گیا ہے کہ ایک خوشحال والوں کا ذکر ہے جن کی نافرمانی کی وجہ سے خوشحال باغ والے کا ذکر ہے.
جن کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عطا کردہ تمام نعمتیں چھین لی اس سے. دوسری طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ تان کرنے والوں کی وجہ سے زیادہ پریشان نہ ہوں، بلکہ صبر کریں اور برداشت سے کام لیں. آخر میں مچھلی والے کا ذکر بھی، مچھلی والے نبی کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے کہ انہوں نے بے صبری سے کام لیا اور انہوں نے یہ سمجھ کر بیٹھا ہے کہ اللہ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو بھی تو آزمائش میں مبتلا کر دیا. مچھلی والے نبی کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، یہ مچھلی کی پیٹ میں چلے گئے، اس کی بعد جو واقعہ ان کی بات پیش آیا ان کی بارے میں ذکر فرما کر اللہ رب العزت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے. اس کے علاوہ قیامت اور اس میں پیش آنے والے بعض حالاتوں کا بھی بیان ہے. اچھا، یہ زمانہ نزول کا جو وقت ہے کہ یہ سورہ شروع میں نازل ہوا، نبوت کی شروع میں نازل ہوئے. سب سے پہلے سورۃ العلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیات ہی نازل ہوئے. علم الانسان ما لم یعلم، سورۃ العلق کی پہلے 5 آیات نازل ہوئے. یہ پہلی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سورۃ الفاتحہ نازل ہوا، اور سورۃ الفاتحہ کی بعد اس کی متصل جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا طریقہ بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. تو دوسری نمبر پر یہ سورت، دوسری نمبر پر سورہ مزمل، یعنی اقرأ بسم ربک الذی کی 5 آیات نازل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئے. پھر اس کی بعد وضو کے متعلق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. دوسری نمبر پر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات نازل ہوئے. اس کی بعد تیسری نمبر اس سورہ مبارکہ کا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو الگ کیا جائے تو سورۃ القلم کے نمبر 4 ہے. شروع میں سورۃ العلق، سورۃ الفاتحہ، پھر وضو کی نماز کے لیے وضو کی متعلق اللہ کے رسول کو بتانا. تیسری نمبر پر سورہ مزمل آتے ہیں. تو اس اعتبار سے سورۃ القلم کی نمبر 4 ہے اگر سورہ فاتحہ کو علیحدہ کی جائے، اور اگر متصل سورہ فاتحہ کو علیحدہ نہ کی جائے تو سورۃ القلم کا نمبر 3 ہے. یہ شروع میں نازل ہوئے. تو پہلے وحی کی دوسرے دن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت ام ایمن جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا لونڈی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیے. تو آزاد کردہ لونڈی ام ایمن، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں شامل تھے اس نماز میں. وحی کی نازل ہونے کے دوسرے دن بعد اللہ کے رسول نے نماز شروع کیا، ابوبکر صدیق. اس کی بعد رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بھائی، منہ بولے بیٹا حضرت زائد
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شامل تھے 5، اس میں سے 3 مرد اور 2 خواتین صحابیہ، اور ایک تو حضرت امہات المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ میرے دوستو، یہ مکہ کے اکثر اور بیشتر لوگ جاہل تھے۔ کفار کا اعتراض، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا شروع کیا تو کہا کہ یہ کیا شروع کر دیا کہ بھائی نماز کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ بندھے، پھر رکوع کیے، پھر سیدھے ہو کے دوبارہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوئے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ کیا طریقہ اختیار ہے؟ تو یہ مکہ کے اکثر اور بیشتر جاہل لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا دیکھ کر یہ عجیب بات تھی، کوئی اس سے عجیب و غریب حرکات کا خیال کرتے تھے کہ یہ عجیب و غریب حرکت کر رہے، اس لیے انہوں نے شروع میں ہی اللہ کے رسول کو طعنہ دینا شروع کر دیا اور کہنے لگا نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول پاگل ہے، یہ مجنون ہے کہ یہ نماز میں ہاتھ اوپر کرتے ہیں، پھر ہاتھ باندھتے ہیں، پھر اس کی بعد کچھ پڑھتے ہیں، پھر رکوع میں جاتے ہیں، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سجدہ میں جاتے ہیں، یہ تو ایک پاگل اور مجنون، یہ کہ پاگل ہوگی، اس قسم کے طعنہ دینے لگے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میرے دوستوں اپنے مشہور کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ نماز اور طہارت کا طریقہ عربوں میں معروف تھا، مشہور و معروف تھا نماز کی طریقہ اور طہارت کا طریقہ، مگر عام لوگ جاہل تھے، جو پڑھے لکھے تھے وہ تو سمجھتے تھے کہ بھائی یہ وضو ایسے، طہارت ایسے کی جاتی ہے، نماز ایسے پڑھی جاتی ہے، لیکن جو بگڑے ہوئے لوگ عام جاہل کو کون سمجھائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 400 سال پہلے تک لوگ واحد تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دین پر تھے۔ یہ قریش کی جد و امجد قصی بن کلاب کا زمانہ تھا، اس کی بعد عربوں کی ایک شخص عمر بن لوہیہ، اس نے بت پرستی سیکھی اور یہاں آ کر بت پرستی کو رائج کر دی۔ تو اس وقت اکا دکا مسلمان تھے، موحد تھے، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین رکھتے تھے اور سارے کے سارے بت پرست تھے۔ بڑے مشکل سے نظر آتا تھا اکا دکا۔ اب توحید کی مکہ کی اتنی بڑی آبادی میں صرف ایک شخص، مکے کی اتنی بڑی آبادی میں ایک شخص حضرت ورقہ بن نوفل، ان کا نام ملتا تھا۔ انہوں نے پہلی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا، سیکھا ہوا تھا، کسی حد تک توحید پرست تھے، اور اس کے علاوہ زید بن عمر بن نافل دوسری نمبر پر ملتی ہیں، جو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم تھے، جن کو عشرہ مبشرہ میں اللہ کے رسول نے ایک مجلس میں 10 آدمیوں کو جنتی کہہ کر خطاب فرمایا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جو زید بن عمر بن نفیل جو ہے، یہ ملتے تھے دوسرے نمبر پر، یہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے۔ اب زید بن عمر بن نفیل خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اور اس وقت مکے کی ہر طرف یہ حالت تھی کہ بتوں کا طواف ہو رہا تھا، صفا مروا کی درمیان بت رکھے ہوئے تھے، مکے کی دیواروں کے ساتھ بت رکھے ہوئے، حرم کے اوپر اور مشعل کے اوپر صفا مروا کی
चारों तरफ कोई भी जगह खाली नहीं था जहां भूते नहीं थे, हर जगह पर भूत ही भूत था। ये अपने हाथों से तरसे हुए ये मूर्तियां, ये बुद्ध बनाकर इन लोगों ने चारों तरफ रखे हुए थे। तो हजरत अमर बिन नफिल जो खाना काबा की दीवार से टेक लगा के बैठते थे, ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हजरत जायद बिन अमर हकीकत से तो बेखबर थे। हजरत जायद बिन अमर बिन नफिल ये हकीकत में बेखबर थे, लेकिन ये समझते थे कि जो भी कुछ हो रहा है ये सारे के सारे सही शिरक हो रहा है, ये लोग सारे के सारे शिरक कर रहे हैं, क्योंकि मक्के की कोई जगह खाली नहीं थी भूतों की अलावा। सफा मरवा से लेकर मशल से लेकर मक्के के ऊपर तक चारों तरफ भूत नस्ब किए हुए थे। अब ये भी समझते थे कि भाई ये हजरत जायद बिन अमर बिन नफी ये समझते थे कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये शिरक हो रहा है। ये इनके हाथों का ज़बीहा भी नहीं खाया करते थे, इनके हाथों से जबे किए हुए जानवरों का गोश्त नहीं खाते थे, जैसे रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी, क्योंकि ये गैरुल्लाह के नाम से जमा करते थे। इसी वजह से इनकी गाय भी है, अल्लाह के नाम से अगर कोई चीज जमा करते थे बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्लाह के नाम लेकर, तो ये भी खा लेते थे उसकी गोश्त। अब मेरे दोस्तों ये इक्के दुक्के जमाना किसी हद तक के 100 में 99% लोग मुशरिक थे, शिरक करते थे। 1% लोग थे जो मुआहिद थे। इन हालत में जब मशीक़ मुक्का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वज़ू करते देखा और नमाज पढ़ते देखा और अल्लाह अकबर कहकर हाथ उठाकर नियत किए और हाथ बंधे, फिर रुकू में गए, फिर रुकू से खड़े हुए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर फिर सिजदे कर रहा है। ये एक अजीब और गरीब की हरकतें देखो इन लोगों ने, मक्के वाले ये मुशरिक लोग। कहा कि ये क्या कर रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, नौजुबिल्लाह के ये तो पागल और मजनून हो गए हैं कि इसकी हरकतों से अंदाजा हो रहा है ये तो पागल है। ये किस दिन थे? नबुवत के 200 दिन अल्लाह के रसूल ने नमाज के लिए खड़े हो गए। तो मेरे दोस्तों अब कुफार की ताना शुरू हो गई। फिर रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसल्ली दी और इनकी हरकतों की ये जो इनकी चाल थे, इनकी गलत रवैये थे, अल्लाह के रसूल के ऊपर जो एतराजात करते थे इसको रद्द भी किया, अल्लाह ने जवाब भी दिए। अब मेरे दोस्तों ये आइए सूरतुल कलम। सूरतुल कलम की जो सबसे पहले नून है ये दो मानियों के लिए इस्तेमाल होती है। एक तो नून का मतलब मछली है, दूसरा इसका माना दवात यानी स्याही इंक। जैसे सूरत की शुरू में अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन स्वाद हुरूफ मुक़त्ताअत है, इसी तरीके से नून ये भी हुरूफ मुक़त्ताअत में है, मगर इसकी जो मुराद दी उलमाए मुफस्सिरीन किराम कि इसका मतलब है मछली, और दूसरे माना इसका उलमाओं ने लिया कि दवात है यानी स्याही। तो मछली का मतलब यह लिया है क्योंकि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़या सूरत के अंदर जिक्र फरमाया कि सूरतुल अंबिया के अंदर के जन्नून इज़्ज़हब मगाज़िबा, मछली वाले पैगंबर का हाल भी आप सुन लें। क्यों मछली वाले की जिक्र फरमाया? अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब उस मछली वाले का हाल तो सुन ले। जब इनकी कौम ने इन्हें तंग कर दिया और दावा देते देते ये परेशानी में पहुंच गए, लेकिन किसी ने भी इनके ऊपर ईमान लेकर नहीं आया और बिल आखिर ये कुछ बातें ऐसे बता दी और फिर उन्हें अपने इलाका छोड़कर निकलना पड़े। तो कहा कि उनके हाल सुने, फिर मछली की पेट में चले गए। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम पूरे वाक़या आपको तो मालूम है, ये जहाज
उछलने लगे भाई, आगे जा नहीं रहे। कुरानबाजी डालते हैं कि भाई कौन है, कि कोई बंदा अल्लाह की ऐसे कोई गुलाम भागकर आगे, मालिक का गुलाम भागकर आगे, ये किसका नाम है? यूनुस अलैहिस्सलाम की नाम, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम की नाम, 3 मरतबा कुरानबाजी करने के बाद उनकी नाम। तो भाई मुझे डालो, नहीं डाल रहा है, वो खुद ही छलांग लगा दी, मछली ने उन्हें खा लिया, मछली के पेट में चले गए। उसका जिक्र किया कि ये कितने परेशान किए थे, और वो समझ रहे थे कि वो गिरफ्त में नहीं आएंगे, लेकिन मैंने उनको भी आजमाइश में डाल दिया। आप सुन ले, आपको भी ऐसे ताने देते रहेंगे ये कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, ये भाई हाथ बांधे तो रुकू में जा रहे हैं, तो रुकू से खड़े हो रहे हैं, सिजदा में जा रहे हैं, ये आपको ताना दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये तो पागल होगी, नाउजुबिल्लाह, ये तो मजनून हो गए, ये कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं। शुरू में नबूवत की दूसरी दिन जब आयतें नाज़िल हुआ, सूरतुल अलक, तो सूरह फातिहा, फिर उसके बाद सूरह मुज़म्मिल, वज़ू की तहारत के बाद सूरह मुज़म्मिल, फिर उसकी बस नून वल कलम वमा यस्तरून, ये सूरत 4 नंबर पर नाज़िल हुए। अब अल्लाह के रसूल ने जब नमाज पढ़ना शुरू कर दी तो ये ताना देना शुरू कर दिया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के जिक्र का वाकया अल्लाह रब्बुल इज्जत इसलिए जिक्र फरमाया कि अल्लाह के रसूल को एक तसल्ली दे रहे हैं, तंबीह फरमा रहे हैं कि देखिए उनको भी ऐसे परेशान किए थे इन लोगों ने। अब मेरे दोस्तों, नून के दोस्तों माना मैंने बोला था ईंट, दवात। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इज़ा मशौक़ बर्रहाली इलैहिम अलक़तिन नून बिद्दमइ सजूरी, जिस वक़्त मुझे शौक उनकी तरफ सताता है तो फिर दवात अपने आंसू मुसलसल बहाने लगते हैं, दवात अपने आंसू मुसलसल बहाने लगता है। यानी जब मैं कलम लेकर खत लिखने बैठता हूं तो कलम क्या करते भाई? आंसू बहाता है। जब मुझे उनकी याद सताता है तो कहने लगा कि मुसलसल आंसू, दबात आंसू बहाने लगते हैं। स्याही, इंक, आंसू, उससे मिसाल आंसू का दिया है कि जब आप खत लिखने बैठते हो तो भाई कलम आंसू ही तो बहाते हैं। किसी चीज को जब लिख रहे होते हैं तो मेरे दोस्तों ये स्याही गिरने लगती है, तो इससे आंसुओं से तस्बीह दी। आगे देखिए फरमा रहे हैं, क्योंकि कलम की करीबी राब्ता क्या है भाई? स्याही है, दवात है, करीबी राब्ता। कलम बगैर स्याही का तो नहीं चलेगा ना। तो अल्लाह ने फरमाया नून वल कलमी वमा यस्तरून, कसम है कलम की और जो उससे लिखी जाती है, जो उससे लिखती है। एक जगह कलम का माना आम भी हो सकता है, खास भी हो सकता है। आम माना है कि जो कुछ इस कलम से लिखे गए, यानी जो लिखते हैं, और खास यहां पर यह है जो तकदीर का कलम है, यानी जो कुछ आगे होने वाले हैं। वल यौमिल आखिर वल कदरी खैरिही व शर्रिही, हम अपने तकदीर की भलाई और बुराई के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। तो यहां खास माना का मतलब यह है, इस कलम से मतलब क्या है भाई? यह है कि भाई तकदीर है कि जो कुछ तुम्हारे साथ होने वाले हैं। अल्लाह ने हुक्म फरमाया कलम को, जब अल्लाह ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और हुक्म फरमाया उक्तुब, लेख भाई। क्या बोला? लेख। मा काना वमा यकूनु, यानी जो वाकयात होने वाले हैं, जो वाकयात होने वाले अपने फ्यूचर की, मुस्तकबिल की तमाम तर चीजें लेख। कलम को हुक्म फरमाया और कलम लिखना शुरू कर दी। तो ये गोया कि तकदीर है इस कलम से मतलब। आगे देखिए कि अल्लमल कुरान, अल्लमा बिल कलम, अल्लमा बिल कलम, यानी अल्लाह ताला ने कलम के जरिए से ही इल्म सिखाया है। इस लिहाज से कलम को बड़ी हैसियत हासिल है। लोहे कलम को अल्लाह ने बनाया तो सबसे पहले क्या भाई? कलम अल्लाह ने पैदा किया।
तो अब इसी तरीके से दुनियावी चीजों के लिए, हुकूमत के लिए दो चीजें हैं। क्या है भाई? एक नंबर सबसे पहले कि भाई कलम है, दोस्तों क्या है? तलवार है। असेंबली में बिल पास होता है, निकाते भाई पास करते हैं। अभी तो 26 निकाते चल रहा है, 27वां में भी चलने वाले। देखो भाई किससे लिखते हैं? कलम से। तहरीर किससे होती है? कलम से। कानून पास हो गए, किताब की शक्ल बन गई, कानून की किताबें बन गई। अब जब उस मुल्क की कानूनदा होती है, इसको पढ़ने वाले होती हैं, उसको जज कहते हैं भाई, ये हकीम बन गए, जज बन गए। अब जो ये कानून लिखे हुए होते हैं और जज इसी के ऊपर फैसला करते हैं, फिर तलवार चलता है, फांसी चल रहे होती है, फांसी की रस्सी लटक रहे, या फिर तलवारों से सरकलम कर दी। तो ये हुक्म कब चलती है भाई? ये तहरीर की बात, तहरीर की बात। अब ये इसी वजह से ये कलम, अब कलम की गलबाई हासिल है। देखो कलम जो भी कुछ तहरीर करते हैं, तलवार के मुताबिक उसकी अमल होती है, उसी तहरीर के मुताबिक अमल होते हैं। अब यहां वमा यस्तरून, जो भी कुछ लिखे हुए इस कायनात के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे दोस्तों रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया से गुजरे हैं, मेरे दोस्तों, मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, अल्लाह ने आए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की फजल से दीवाने नहीं है। कलम और उससे लिखने वाली जितनी चीजें आदम से लेकर अल्लाह के रसूल तक जो भी तहरीर किए गए, उसको एक पन्ना में रखी जाए और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से एक ही अल्फाज जो निकले हैं मेरे दोस्तों, निकला हुआ एक ही जुमला एक तरफ रख दिया जाए तो एक जुमला हर चीज पर बारी होगा। आदम से लेकर अल्लाह के रसूल तक तमाम तर तहरीर शुदा किताबें, तमाम तर तहरीर शुदा कवानीन ना एक तरफ रखी जाए और अल्लाह के रसूल के ज़बान मुबारक से निकला हुआ एक जुमला को अगर एक पन्ना में रखे जाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से जो जुमला निकला है वो ज्यादा भारी हो। तो इसी वजह से अल्लाह ने भी फरमा दी, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, अल्लाह की फजल करम से आप पागल मजनून नहीं है। ये अल्लाह ने जवाब दिए कि ये आपको पागल और मजनून कहते हैं। आगे देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर फरमान इल्म हकमत का खजाना है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत में कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बच्चे के साथ दिल लगी बात कह दी, यानी मजाकन उस बच्चे से बात किया उसको खुश करने के लिए। अल्लाह के रसूल ने, मुफस्सिरीन किराम और मुफ्तियान किराम, फुकाहे किराम ने उस मजे वाली अल्फाज से, उसके दिल लफ्ज से, मुफस्सिरीन किराम और फुकाहे किराम ने उससे 100 मसाइल निकाले, एक मजाक के अल्फाज से। मजाक, ये बच्चा खुश हो जाएगा और उसी अल्फाज से मुफस्सिरीन किराम ने 100 मसाइल निकाले हैं। फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक से जो कलामुल्लाह शरीफ है, जिस कलाम को अल्लाह ने अपनी कलाम कहकर खिताब फरमाया, कितनी बड़ी कलामुल्लाह शरीफ की एजाज है और किसी किताबों में यह एजाज नहीं हासिल है। अल्लाह ने और किसी किताबों को, आसमानी किताबों को कलामुल्लाह शरीफ नहीं कहा। एक वाहिद कुरान करीम फुरकानुल अजीम को अल्लाह ने फरमाया कि यह कलामुल्लाह शरीफ है, अल्लाह की कलाम है। और ये अल्लाह की कलाम अगर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले मेरे दोस्तों, फिर अंदाजा कर लें कि उससे कितने मसाइल, कितनी हजारों मसाइल फुकाहे किराम और मुफस्सिरीन किराम निकाल सकते हैं। एक मजाक के अल्फाज से 100 मसाइल
फुकाए करम अगर निकाल सकते हैं, और कलाम इलाही जो अल्लाह के रसूल ने अपने ज़बान मुबारक से पढ़े और जो अल्लाह ने कलामुल्लाह शरीफ कहा, उस एक कलामुल्लाह शरीफ के लफ्ज या जुमला से कितनी हजारों मसाइल निकाल सकते हैं। फिर तुम उनको पागल कहते हो। ये नमाज में वो खड़े होकर कलामुल्लाह शरीफ पढ़ रहे हैं, फिर रुकू कर रहा है, फिर सजदा कर रहा है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, फिर जाती अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कलामुल्लाह, कलामुल्लाह शरीफ से तो तुम उनको पागल और मजनून कहते हो। नाउज़ुबिल्लाह। आगे देखें हजर अस्वद की तनसीबात के मुताल्लिक बात ही, हजर अस्वद की तनसीबात कि भाई ये तो बात ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाज़िल हुआ, इससे पहले से अल्लाह के रसूल को आमीन और सादिक कहते थे ये लोग। अभी जब अल्लाह के रसूल के ऊपर आयत नाज़िल होना शुरू हुआ, अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई, फिर वो पागल और मजनून कहने शुरू कर दी। अब इनकी यकीन कितनी बड़ी है, जब अल्लाह के रसूल के 25 साल उम्र थे, हजर अस्वद की तनसीबात की बुनियाद पर कि भाई उसको तनसीब का कारनामा आया कि कैसे किया जाए। हर कौम के अपना अपना सरदार था, ये कहते भाई हम रखेंगे, ये बड़ी एजाज की बात है। हर सरदार, हर कौम के सरदार आगे बढ़ने लगे। आप बोलना भाई आपस में लड़ाई फितना फसादात होने लगे कि नहीं ये बेकार है, फितना फसादात होना नहीं चाहिए, फितना फसादात होना नहीं चाहिए। अब फरमाया कि भाई एक मशवरे करो, तय कर ली जाए इस बात के ऊपर कि भाई हजर अस्वद की मुतालिक तो क्या हुआ। बोले फैसला यह की जाए कि सबसे पहले फजर की नमाज हरम के अंदर जो दाखिल होगा सुबह, वही इसी हजर अस्वद को रखेंगे। अब अल्लाह के रसूल की हिकमत को देखो भाई, इनकी इल्म और हिकमत। फरमाया ना कि भाई इनकी इल्म और हिकमत क्या है भाई, ये खजाना है, इल्म और हिकमत का खजाना है अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अब हजर अस्वद की तनसीब अल्लाह के रसूल के हाथों से होंगे। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, अपने चादरें बिछा दी, सारे सरदारों को बोला कि आप कोने में पकड़ो, आप भी पकड़ो, आप भी पकड़ो, आप भी पकड़ो। सबने पकड़ा। जब हजर अस्वद के मकाम पर पहुंची है, अल्लाह के रसूल ने उसको उठाकर वहां रख दी। सब खुश है। बोले भाई देखो ये तो क्या हिकमत है, क्या हिकमत अल्लाह के रसूल, जो इल्म हिकमत के खजाना थे अल्लाह के रसूल, फिर तुम उनको पागल कहते हो हमें। आगे देखें मेरे दोस्तों, ये तो अल्लाह के रसूल की उम्र जब 25 साल थे उस वक्त की बात। आगे सबने कहने लगा भाई रजीना रजीना, हम तो खुश हो गए भाई, हम खुश है, हम खुश है, हम राजी है भाई, हम राजी है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बातों के ऊपर। आगे फरमा रहे कि पागलों के काम, ये पागलों की काम नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि इन नकल अजरन गैर ममनून, कि भाई देखो ये हजर अस्वद की तनसीब जो किया है ये पागलों का काम है, पागलों का काम नहीं है। ये कितनी बड़ी इल्म हिकमत की बात थी कि सब खुश हो गए। आगे अल्लाह ने फरमाया इन नकल अजरन गैर ममनून, फिर फरमा दी कि भाई आगे यानी आपके लिए बेइंतहार कभी ना खत्म होने वाला अजर है। आपकी अपने अमाल और आपसे इल्म सीख कर आगे जितने भी सरंजाम पाने वाले हैं मेरे दोस्तों, सरंजाम दे जाने वाले तमाम तर अमाल आपके हिस्से में रहेंगे। कोई भी आप नेक अमल करो आपकी जरिए से, इसी वजह से बोलता है दावत की काम बहुत ऊंचा काम है। आपने किसी को दीन की तरफ बुलाया, नमाज की तरफ बुलाया, अल्लाह की तरफ बुलाया, अच्छे काम की तरफ बुलाया, आपकी जबान से निकला अल्फाज और आपके पीछे उसने सीख ली, उसने आगे दावत देते रहे, वो उससे आगे देते रहे, वो ऐसे एक सिलसिला चलते रहा। और जिससे ये सिलसिला इसने सीखा है, ये क़यामत तक ये सिलसिला चलते रहेगा, उसकी सवाब से भी कमी होगा नहीं। इसी वजह से फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज अपने मुंह से निकला, जो अपने अमाल किए हैं और उसी को सिलसिलावार लेकर जो चलते रहेंगे क़यामत तक, अल्लाह के रसूल की ये अजर ना खत्म होने वाले। वह इन्न लका अजरन गैर ममनून, कि भाई आप इतनी बड़ी अजर की मालिक होंगे मेरे दोस्तों। फरमाया अल्लाह ने कि वह इन्न लका, आपके लिए तो इतनी बड़ी अजर है, गैर ममनून, ना खत्म होने वाले, क़यामत तक ये चलते रहेंगे। वह इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक
آپ تو بہت بڑے اخلاق کے مالک ہے، بہت بڑے اخلاق کے مالک. بس بھائی آج یہاں تک رکھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے اوپر بات ہی آئندہ جمعہ کو ہوں گے کہ کیسے محسن انسانیت ہوئے. اللہ کے رسول کے اخلاق مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ کو بتا دیں گے. اللہ پاک پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.